Hello and good morning, friends. Sorry, good evening. Yeah, as it is our first interaction today. So, am I audible to you all? Please, somebody tell me in the chat box. Hello, friends. Am I audible? And I hope the voice is clear. Yes, sir. You are audible and voice is clear. Okay. I hope that in last 2 3 days there is somewhat relief from the heat wave because in some or the other places the monsoon has arrived and all of you have enjoyed the first rain of the seasons. So friends, as you all know that we are into this third lecture of the pain management or the Ayurveda orthopedic segment. Dr. Madhuri ma'am, because maximum people are audible, so please check with your device. Okay. So friends, let's without wasting time, let's start our today's topic for this webinar. That is the significance of multidimensional approach. Multidimensional approach. Why multidimensional approach or the significance of the multidimensional approach is important in pain management. Okay, so let's start with today's presentation. Today's lecture is going to be. Hello. Oh. So we'll just start with the presentation. Are the slide visible? Yes, sir. Visible. Okay. So today's topic for the lecture is the significance of the multidimensional approach in the pain management. So my brief introduction is given on the slide that myself, Dr. Swapnil Gawande, Ayurveda consultant for pain, stress and sport injury management. I have completed my MSc in sports science and completed my diploma in osteopathic manipulative practice from Osaka, that is from Japan Healthcare Association's PALMS Osteopathic College, Japan, and I have completed near about 14 manual therapy international certifications. And I have also been practicing as a sports medical officer at Krida Prabodhini, Akula. Dr. Kalicharan sir, please don't write on the whiteboard. It is disturbing. So the today's topic that why multidimensional approach is important for the pain management or for the what we call the Ayurvedic orthopedic practice. As you all know that, just see one funny slide first. So here you can see we all have heard these stories of the blind who are been to zoo to see the elephants, and I think that most of the times we are also doing the same thing while diagnosing a musculoskeletal disorder or a pain, like for example a patient is having a knee pain. So we think sometime it is coming from the meniscus, we think sometime it is a muscular pain, or we think sometime that it is a tendinous pains, or is it because of the osteoarthritis and bones are getting degenerated, or the ligament pain like the rupture of ligament like ACL, PCL, MCL, or LCL.
or are there osteophytes? There may be a spelling mistake, but this is how we are doing. And then most of the times we jump into hurry to treat the patient, and then we try as per Ayurved point of view, who are practicing as a classical Ayurved practice, they will think of it that there is a Kshayatmas Samprapti, there may be a Strota Vrod, there may be a Sthan Vaigunya, there may be a Dosh Vimargaman, there may be a Bhagna. सो हम लोग बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी चीजों को देखते हैं आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू में। किसी भी डिसीज या किसी भी मस्कुलोस्केलेटल डिसीज, जिसको हम वात रोग भी कहते हैं आम भाषा में, उसमें हम क्या करते हैं कि यही कुछ संप्राप्तियां है कि वहां पे कौन सा दोष प्रकोप हुआ है, कौन से गुण कम या ज्यादा हुए हैं, वहां पे किस धातु में किस धातु में आवरण है, क्या पित्त का आवरण है, यानी वातावृत्त पित्त है या पित्तावृत्त वात है, या अवृत्त वात जो है, अवृत्तत्व जो है वात का, वो किसी दोष पे है, यानी दोषावृत्तत्व है, या स्त्रोतावरोध है, या स्त्रोतोगामित्व है, या फिर क्षय है। और हमने ऑलमोस्ट हमारे फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक एक कॉमन संप्राप्ति, सामान्य संप्राप्ति किसी भी डिसीज की सीखी है कि किन्हीं कारणों से रीजंस, बिकॉज द दोष प्रकोपक रीजंस जो भी होते हैं, दोष प्रकोपक रीजंस की वजह से दोषों का प्रकोप हुआ। फॉर एग्जांपल वात प्रकोपक कारणों की वजह से वात का प्रकोप हुआ और उसका स्थान संचय होके, उसका विभार गमन होके, उसका जानुसंधि में स्थान संचय हुआ और वहां पे वात प्रकोप जन्य संधिवात हो गया, या वात की क्षय, चल गुण का वहां पे क्षय होने की वजह से वहां पे क्रिया हानि हो गई। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी ऑलवेज सी इन आवर प्रैक्टिस, लेकिन हमें इसको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके में समझना बहुत जरूरी है। वेन हम जानू बस्ती कर रहे हो, या हम किसी जानू में वेधन कर्म कर रहे हो, या जानू धारा कर रहे हो, but we should be very clear that which anatomical structure, which dosh, which dhatu, which uh, particular strotas we are dealing with. So this is how we should see the diagnosis as a whole elephant, and we should always try to treat it as a, because when a patient comes to you with osteoarthritis, and this is I am telling you for the just for the example point of view, it may happen in any of the joint. It may be the case in the lumbar spondylosis, cervical spondylosis, it may in the shoulder joint injury, it may be in the ankle joint injury, it may be into the any injury, but this is the common that we should learn to see the pain or the injury or the deformity as an elephant, not as a body part of the elephant. For example, if your patient is coming to you with a osteoarthritis या जानु संधि का पेशेंट, जानु संधि शूल का पेशेंट जब आपके पास आ रहा है, तो we should, the first thing come into mind that I have to examine that which of these anatomical structures, कौन से दोष, कौन से धातु, कौन से वहां पे एडजॉइनिंग चीजें हैं जो डिस्टर्ब हुई है, यानी क्या वहां पर अस्थि कंटक है, क्या वहां पर कार्टिलेज यानी मिनिस्कस डैमेज है, क्या वहां पे मसल्स में कोई इंजुरी है, क्या वहां टेंडन में इंजुरी है, बोन्स में अगर कितना डिजनरेशन है, बोन्स कितने हेल्दी है, लिगामेंट कितने हेल्दी है, एंड व्हेन वी विल सी दिस एज अ होल पिक्चर, so it will be very easy for us to treat. Got it? So this is my point. Don't look to a pain, don't look to an injury or a part as a part of the any particular part of the elephant, but see it as an elephant, diagnose it as an elephant, not as a particular body part. Okay. So going next.
So for example, as we have taken the example of the knee joint, so we will discuss for the stance as a knee joint, that how could be the diagnosis and how could the multidimensional approach will help us in diagnosing and treating the knee joint. You can see the picture on your screen, the complex knee joint. Here you can see that this is the IT band, this is the popliteal fossa, this is the uh, greater tuberosity, this is the LCL, that is lateral collateral ligament. You can see that the knee is covered with the complete fascia, then ligaments, then deep fascia, then tendons, then muscles, bones, and this is how actually knee is. Knee is just not like the femur, tibia, and patella. It is not like the PCL, MCL, LCL. It is not like the any specific joint, but knee is a complete combination, the intact combination of these all, and hence any of the anatomical structure get hurted, then it will have the effect on all other anatomical structures. So we have to see it as a whole. For example, if there is a patellar dislocation, or if there is a patellar femoropatellar arthritis, or a tibiopatellar arthritis, or there is a femorotibial arthritis, or there is a meniscus, any of the condition in the knee will have the impact on the other structures like ligament, tendons and meniscuses. तो इस तरह से बेसिक चीज समझना जरूरी है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर इंज्योर्ड होता है, कोई भी धातु, कोई भी दोष वहां पे अगर डिस्टर्ब होता है, तो वो दूसरे एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर पे उसका इफेक्ट जरूर होगा। और इसीलिए जब हमें ट्रीटमेंट करना है, तो हमें ट्रीटमेंट वही से शुरू करनी है कि हम सबसे ज्यादा लोड, सबसे ज्यादा जो इंजरी है, और सबसे ज्यादा अफेक्टेड पार्ट या सबसे ज्यादा अफेक्टेड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कौन सा है, और वहां से हमें उसे शुरू करना है। या फिर जो सबसे आसानी से आप ठीक कर सकते हो, जहां से सबसे आसानी से आप प्रेशर रिलीज कर सकते हो, जहां से आप उसको हील कर सकते हो, वहां से हमें शुरू करना है। बट अल्टीमेटली आपको सोचते वक्त सारे की सारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स, right from skin to the bone up, you have to think of it. Okay, then friends, देखिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। बिकॉज as you know, as you all know that रीजनल, इसको कहते हैं रीजनल इंटरडिपेंडेंस। रीजनल इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है कि एक स्ट्रक्चर का दूसरे स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट कैसे होता है। सो ये आपके सामने एक स्केच है, जिस स्केच में आपको दिख रहा है कि जिस स्केच में आपको दिख रहा है कि कुछ पॉइंट्स बने हैं, ये कलरफुल पॉइंट्स बने हैं, जो कि नॉर्मली पेन साइट होती है एक नी इंजरी में या नी पेन में। नी पेन में ये साइट्स होती है कि आप देखोगे तो जनरली पेशेंट यहाँ पॉइंट आउट करके आपको बताएगा कि यहाँ पर पेन हो रहा है। जस्ट अ सेकंड। ओके फ्रेंड्स, तो ये नॉर्मली डर्माटोन्स बोल सकते हैं या एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स है, जो कि नॉर्मल पेन साइट से नी जॉइंट में। तो चलिए अभी हम फॉर एग्जांपल समझते हैं, ये जो बी वाला है, जो वॉयलेट कलर में जो आपको यहाँ लेटरल साइड में पेन, नी के लेटरल साइड में जो पेन हो रहा है, आपने बहुत सारे पेशेंट्स देखे होंगे जो बताते होंगे पॉइंट आउट करके कि यहाँ पर पेन हो रहा है। सो अभी लेट्स अंडरस्टैंड कि ये पेन यहाँ पे क्यों होता है, या व्हाई देयर इज अ पेन इन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो ये पेन बहुत बार होता है बिकॉज ऑफ द आईटी बैंड टाइटनिंग, या आईटी बैंड सिंड्रोम भी उसे कहते हैं। तो वेयर इज आईटी बैंड? आईटी बैंड चालू होता है आपका आपके सॉरी पेल्विक से, पेल्विस से, या आपके
sacroiliac joint से तो नी तक. You can see that this is the iliotibial band. अगर इस पर्टिकुलर एरिया में, इस sacroiliac में, इस इलियम में, इस इलियाक ट्यूबरियोसिटी में अगर कहीं पे पेशेंट को स्प्रेन आ गया है या कहीं पे पेशेंट को पुल आ गया है या इंजरी हो चुकी है किसी वजह से, तो वो पेन अगर यहाँ पे हो भी रहा है इलियोटिबियल बैंड पे, तो उसका लोकलाइज पेन पेशेंट विल फील एट द आउटर पोर्शन ऑफ द नी जॉइंट, एट दी. ये अगर इलियम पे कहीं पर भी आपको इंजरी हो जाए या फिर पेशेंट हैज गॉट दी स्पेजम या ट्विस्ट हो जाए या फॉल हो जाए, और ओवर यूज इंजरी लाइक इन रनिंग बास्केटबॉल फुटबॉल, ऐसे जो प्लेयर्स है इनको भी ये बहुत कॉमनली होता है. बट द रीजन इज नॉट इन द नी, द रीजन इज एट द इलियम और द इलियल एंड ऑफ द आईटी बैंड, and this is the insertion of the IT band. So you can understand कि अगर आप यहाँ पे नी पे कितनी भी ट्रीटमेंट करोगे तो you will not get the proper result. You have to do the release of this complete band and you have to treat here. Therefore automatically patient will feel the relief at the knee joint. So this is how important is the iliotibial. Sorry. So this is how it is also called in a physical term, that is the regional interdependence of the body. So the knee is dependent on this ilium. So how can we then treat or understand the diagnosis? So let's see. So the basic thing you should understand that at any point of things, there are two types of tissues. That is, one is the hard tissue and the soft tissue. Hard tissue, you all know, is the bone. So there can be the injuries either in that bone or in these four soft tissues. That is muscles, fascia, ligaments, and tendons. So we have, whenever we are thinking of injury or any pain or any condition like arthritis, spondylosis, or any specific disease, for example, ankylosing spondylosis or ankylosis, or there are some quad equina syndrome. So basic anatomical structures which are accessible through our treatments are these four soft tissues, one bone, and other types are the nervotic then. In quad equina syndrome, the nerves are involved and we have to focus on the nerves. So whenever we are thinking of a pain, we have to collectively think that what is the effect on muscle, what is the effect on fascia, what are the effect on ligament, tendons, nerves, and the bones. And one by one we have to go and treat, and we have to also unmask the major component. In the language of osteopathy, it is called as a key it is called as the key lesion. The key lesion, the most important lesion, where is the basic problem is there. Is the basic problem in muscle? Is the basic problem in fascia? Is the basic problem in ligament or tendon, bones, or in the nerves? So the best way to treat this way is to find that key lesion, treat that key lesion, and focus on that key lesion, then automate and gradually release the pressure on the other anatomical structures. That will give you the long-term treatment with a Punarbho. It is also going to help you in rehabilitation and recovery from the injuries and recovery from the pain conditions. So in when we compare these anatomical structures with Ayurveda, Ayurveda has a very good point of view. Ayurveda has got a very good vision to see towards it, that the bones
can be compared with Asthi Dhatu, ligaments can be compared with Snayu, which are the Upadhatu of Med, the tendons, that is Shira and Kandara, Rakta, Upadhatu of the Raktas, muscles can be compared with Mas Dhatu. Meniscus are the combination of Med, Majja and Vasa, which are the Upasthi, we called it. Synovial fluid is a Shleshmadhara Kala, and the Barsa, which is called as the Picha, which is explained as a Picha in the Ayurveda by the Sushruta. So this is how when a pain condition, when a diagnosis you have to make, we have to keep all these structures into the mind, and then we have to think that what are my selection of the drugs, what should be my selection of the drug for the Asti Dhatu, what should be the selection for the Snayu or Sira Kandaragatvat or the Mas Peshigatvat, the Vasagatvat, sorry, the Majjagatvat, what is the Shleshmadhara or Shleshmadhara, what is, that is the which is explained in Vat Kalakali Adhyay. Then is there a disintegration of the soft tissue like bursitis or the abrasion, and how should I approach to the treatment? And it will be very easy. For example, there is a अस्थि धातु भग्न, तो फ्रैक्चर है, अगर हम ऐसा समझ लेते हैं तो आयुर्वेद में बहुत अच्छे से वहां पे लेपन चिकित्सा बताई गई है, वहां पे बंधन बताए गए हैं अलग अलग। उसी के साथ चरक ने वहां पे बृहनीय गण बताए हैं। अगर मांस धातु क्षय है, अगर क्षय संप्राप्ति है तो हम उसको बृहनीय गुण से दे सकते हैं। अगर भग्न है, तो अगर लिगामेंट टीयर है, टेंडन टीयर है, बोन फ्रैक्चर है, तो हम संधानीय गण के द्रव्य यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम डायग्नोसिस प्रॉपर कर ले तो हमारे लिए ट्रीटमेंट सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। देन इसीलिए इसी सारे कंसेप्ट को लेके कि उसका डायग्नोसिस किया जाए, उसे डायग्नोसिस में हम परसेप्शन लाए जाए, हम उसके ट्रीटमेंट में प्रोटोकॉल सेट कर सके और हम रिप्रोड्यूसेबल रिजल्ट दे सके। रिप्रोड्यूसेबल रिजल्ट का मतलब क्या होता है कि आयुर्वेद में बहुत बार रिसर्च के बारे में बोला जाता है, आयुर्वेद में बहुत बार स्लो ट्रीटमेंट के बारे में बोला जाता है, आयुर्वेद में बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि आयुर्वेद की दवा ऐसी है कि नाना को दो तो पोते को असर आएगा, या पोते को दो तो नाना को असर आएगा। ऐसा लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट होता है, ऐसा बोलते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हम रिप्रोड्यूसेबल रिजल्ट का मतलब ऐसा है कि अगर कोई घुटने के दर्द का पेशेंट, अगर आपके पास जानू संधि शूल का पेशेंट आ रहा है और ऐसे 10 पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, तो 10 पेशेंट का आउटकम या रिजल्ट सेम नहीं रहेगा। 10 में से 5, 6, 7 पेशेंट तो आप ठीक कर लोगे, लेकिन 3-4 पेशेंट को आप ठीक नहीं कर पाओगे, या आप अटक जाओगे, आप रेजिस्ट हो जाओगे। और उसका रीजन यही रहेगा कि शायद कहीं तो भी आप कुछ तो भी मिस कर गए हो। सो हमें एक ऐसी सिस्टम डेवलप करनी है कि जिससे हम ये चीजें मिस ना करें, और इसीलिए एक नया पर्सपेक्टिव इन द पर्सन सेंटर्ड पेन मैनेजमेंट के लिए हमने लाया है, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड पेन मैनेजमेंट। हम आयुर्वेद, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स, उसको डायग्नोसिस का नया तरीका, यानी ट्रीटमेंट वही, ख्याल वही, लेकिन सोच नहीं। इसके साथ पेन मैनेजमेंट में हम एक रिवॉल्यूशनरी कदम रखने जा रहे हैं। तो आइए इसमें से कुछ अंश मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल ड्राई नीडलिंग, हम लोग वेदन कर्म करते हैं। वेदन कर्म एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। वेदन कर्म एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, जिससे बहुत बार आपको ब्रिलियंट रिजल्ट आएंगे। जहाँ पे गति हानि हुई है किसी भी संधि की, चाहे वो शोल्डर जॉइंट हो, चाहे वो एल्बो जॉइंट हो, रिस्ट जॉइंट हो, या नी जॉइंट हो, मगर 2 पार्ट से हम जो वेदन कर्म करते हैं, जनरली वो सुपरफिशियल पेनिट्रेशन होता है। इट इज जस्ट स्किन डीप होता है। तो उसकी वजह से केवल सुपरफिशियल फेशिया या सुपरफिशियल जो त्वकगत वात है, जो त्वचा पे जो प्रेशर आया है बिकॉज ऑफ दी अदर इंज्यूरीज, अदर डीप टिश्यूज, अदर डीप मसल्स, वही रिलीज होता है। और इसीलिए बहुत बार वो अल्पावधि के लिए तो पेशेंट को रिलीज दे देता है, बहुत जल्दी रिलीज देता है, लेकिन बहुत समय तक वो रिलीज टिक नहीं पाता है।
तो हमने इसी को मॉडिफाई करके हम इसे कहते हैं ड्राई नीडलिंग, या हम इसे कह सकते हैं आयुर्वेदीय भाषा में गंभीर वेदन करना। जैसे कि आप लेफ्ट साइड वाली पिक्चर में देख सकते हो, फर्स्ट नीडल सुपरफिशियल गई है, सब क्यूटेनियस टिश्यू तक ही जा रही है ये, और जब हमने डीप पेनिट्रेशन किया है तो इट इज गोइंग टू द मस्क्यूलर लेवल। तो जो मांसगत वेदन कर्म है, मांस डीप का वेदन कर्म है, और किस तरह से करना है वो भी हम सीखेंगे। राइट वाले नी में देख सकते हैं कि जो मैंने आउटर पोर्शन पे या लेटरल एस्पेक्ट पे जो पेन की साइड बताई थी, जो कि इंसर्शन पॉइंट होता है इलियोटिबियल जॉइंट का, वहां हमने ड्राई नीडलिंग की है, उसके इंसर्शन पे ड्राई नीडलिंग की है, जिसकी वजह से वो डीप जाएगा एंड इट विल हेल्प और टू रिलीज इट द स्ट्रेच ऑन द आईटी बैंड। इसी के साथ वो स्टिम्युलेट भी करेगा वहां की मसल्स को। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग फ्रॉम स्किन टू डीप। उसके बाद में उसी के नीचे हमने यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा कि लिगामेंट्स और टेंडॉन्स, जो शीरा कंडरा ये रक्त के उपधातु है, तो रक्त के उपधातु में जब वहां पे जो ट्रिगर पॉइंट था जहां पे सबसे ज्यादा थ्रॉबिंग पेन था, क्योंकि आपको पता है कि थ्रॉबिंग पेन जो होता है ये रक्त दृष्टि का एक प्रमुख साइन है। तो इस भेदवत जो ये है, तो यहाँ पे हमने इसका वेट कपिंग किया है, कपिंग विथ निडलिंग किया है। यहाँ से हमने उनको रक्त मोक्षण करके हमने जो एक्स्ट्रा प्रेशर जो उस लिगामेंट टेंडोन पे पड़ रहा था वो भी हमने कम किया है। देन जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम इसमें डायनेमिक कपिंग कर रहे हैं पेशेंट को। डायनेमिक कपिंग से क्या होगा, जो डीप टिश्यूज में जो डीप फेशिया टाइट हो चुका है वो रिलीज होगा। सो वी आर गोइंग इवन मोर डीपर। देन फिर उसकी वजह से जो जानू पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर आया था, जो उसके एलसीएल है, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है, उसके बाद में उसका टीबियो पटेलर लिगामेंट है, इन सारे लिगामेंट्स पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा था बिकॉज ऑफ दी आईटी बैंड ओनली। देखिए शुरुआत हुई थी आईटी बैंड के स्ट्रेचिंग से, लेकिन उसका इम्पैक्ट सारे घुटने के सारे स्ट्रक्चर्स पे, एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स पे आ रहा था। सो वी हैव रिलीज दैट एंड नाउ वी आर डूइंग दी जानू बस्ती। लेकिन इस जानू बस्ती में भी हमने वेरिएशन किया है कि वी आर गिविंग द लेजर लाइट। सो वी आर गिविंग द लेजर। सो ये एक प्रकार से अवगाह श्वेत के साथ अग्नि का भी हम उपयोग यहाँ पे कर रहे हैं। सो इन सारी चीजों को, इन सारे टेक्निक्स को, इन सारी चीजों को हम एक कंबाइंड मास्टर क्लास के द्वारा आप हमने एक प्रोग्राम 6 मंथ का कॉम्प्रहेंसिव ऑर्थोपेडिक कोर्स फॉर आयुर्वेद डॉक्टर्स हमने डिजाइन किया है। इस कोर्स में आप यहाँ से यानी फ्रॉम द डायग्नोसिस, पेन का मैकेनिज्म क्या होता है से लेके तो उसका रिहेबिलिटेशन कैसे हो, दर्द ठीक होने के बाद वापस अपुनर्भव कैसे हो, और हम लॉन्ग टर्म रिलीफ कैसे पेशेंट को दे सकते हैं, उस सारी चीजें इस मास्टर क्लास में मैंने कवर की है। चलिए लेट्स सी समथिंग कि मास्टर क्लास जो होने वाला है उसका स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा कि 6 मंथ कोर्स है, और इस कोर्स में जो है 70% डेली ओपीडी पेशेंट जो होते हैं हमारे, वो सिंपल ऑर्थोपेडिक के होते हैं। ऑर्थोपेडिक्स दो टाइप का होता है, एक होता है हॉट ऑर्थोपेडिक्स और एक होता है कोल्ड ऑर्थोपेडिक्स। जस्ट अ सेकंड, जस्ट a minute, I will be back in a minute.
So friends, there may be some technical glitch because there is raining heavily. How is it? Raining heavily. If there is a technical glitch or there is a discontinuation or the I may got left for some time, I will join into 5 to 7 minutes. So be with us because there may be a network issue because of the Wi-Fi, but I will rejoin in as soon as possible. So we are doing already this patient that I was speaking about cold orthopedics and hot orthopedics. So the hot orthopedics is the orthopedic in which there are the obvious trauma, there are the fracture, there are the crush injuries, and where the absolute surgery is necessary. So, which is a job of a particular orthopedic surgeon. But the 90% orthopedic cases are of the cold orthopedics. That is osteoarthritis, ankle sprain, the low back pain, the muscle spasms, the degenerative disorders, again, some of the medical conditions like ankylosis of the joint or the rheumatoid arthritis, and all other things are being covered into the cold orthopedics. Now the new branch also has developed, that is the rheumatism. Okay, so just let's see the structure of the course, that how this course is going to happen. So we are going here module by module. That is, first we are going to see the general anatomy. Just I have shown you that how the muscle works, how the tendons works, how the ligaments works. Then we are going to understand that how our Saptadhatu Lakshana and Saptadhatu are being explained in the संहिता. जैसे चरक सुश्रुत वाग्भट में जो भी सप्त धातु के बारे में बताया गया है, वो आज के इसमें, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के ऑर्थोपेडिक साइंस में कितना संयुक्तिक है, वो भी हम देखेंगे. उसके साथ में हम फंक्शनल एनाटॉमी, स्पाइन और जॉइंट का भी देखेंगे. तो ये ऐसा समझ लीजिए कि एक मॉड्यूल में 4 से 5 लेक्चर होंगे. तो इंट्रोडक्शन, जनरल एनाटॉमी, सप्तधातु और मॉडर्न एनाटॉमी, इसका पकड़ के 4 से 5 लेक्चर होंगे जिसमें हम इन डेप्थ जनरल एनाटॉमी सीखेंगे. कि उसके बाद में हमारा जो मॉड्यूल 2 होगा उसमें हम कुछ टेक्निकल थेरोटिकल पार्ट, जैसा कि पेन गेट मैकेनिज्म होता है, कि पेन जो होता है ये परसेप्शन है. जैसे आप ब्लड प्रेशर गिन सकते हो, आप फीवर गिन सकते हो, आप सारे पैरामीटर गिन सकते हो, बट आपके पास ऐसा कोई टूल नहीं है कि जिससे आप पेन गिन सको. क्यों नहीं गिन सकते? क्योंकि पेन इज अ परसेप्शन. अगर दो लोगों को सेम डायग्नोसिस है लेकिन पेन का परसेप्शन अलग अलग हो सकता है. तो एक्चुअली पेन होता क्या है, पेन का न्यूरल कनेक्शन कैसा होता है, हमें पेन को परसेप्शन कैसे समझना है, जिससे हम ये पता चल सके कि पेन का ओरिजिन कहाँ पर है. उसके बाद में आयुर्वेद वात विचार क्या है. आयुर्वेद में जो ये मस्कुलोस्केलेटल डिसीज जिनको हम वात विकार कहते हैं, जिसमें सारी प्रकार की डिजेनरेटिव और एनाटॉमिकल पोस्चरल प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको हम वात विचार के बारे में सोचने वाले हैं. देन क्लासिफिकेशन ऑफ पेन, हम अलग अलग तरीके से पेन को कैसा क्लासिफाई किया जाए, उसकी इंटेंसिटी से, उसके स्थान से, उसके सीवियरिटी से, उसके डायग्नोसिस पार्ट ऑफ पॉइंट से. देन वात रोग सामान्य एंड विशेष चिकित्सा. वी आर गोइंग टू सी द आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सामान्य चिकित्सा. जैसे कि आज हमने लेक्चर में पहले देखा कि सामान्य संप्राप्ति और विशेष संप्राप्ति. देन विशेष चिकित्सा सिद्धांत भी हमें समझना होगा इसमें, कि हम किस तरह से किस पेन को अप्रोच करें. जैसे कि मैंने आज के केस में आपको दिखाया कि देयर वाज अ आईटी बैंड प्रॉब्लम, लेकिन आईटी बैंड की वजह से घुटना दुख रहा है, फिर घुटने की वजह से प्रोलॉन्ग पेन की वजह से उसके बाकी स्ट्रक्चर्स पे भी किस तरह से असर पड़ा है, हाउ ऑल अदर स्ट्रक्चर्स आर गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर आईटी बैंड. तो उसके लिए सामान्य और विशेष चिकित्सा क्या होगी वो भी हम देखेंगे. देन हम किसी भी जॉइंट का या ओवरऑल क्लिनिकल डायग्नोसिस सीखेंगे पेन के लिए,
कि हाउ द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ द पेन शुड बी डन, हाउ द पेन शुड बी रिकॉर्डेड, हाउ द पेन शुड बी कैलकुलेटेड, और क्लिनिकली हम कैसा समझता है डायग्नोसिस के पास कैसे जा सके, यानी हाउ, अगर मस्कुलर पेन है तो हम उसको कैसे समझ सके, अगर फेशियल पेन है तो हम उसे कैसे समझ सके। देन पोस्चरल एनालिसिस, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि 80% लो बैक पेन और सर्वाइकल स्पाइन के 80% केसेस जो होते हैं वो पोस्चर की, गलत पोस्चर की वजह से ही होते हैं। और इसी पोस्चर का रेडियोलॉजिकल एनालिसिस कैसे करना है, पैथोलॉजिकल एनालिसिस कैसे करना है, ब्लड टेस्ट, अलग अलग ब्लड टेस्ट, अलग अलग ब्लड पैथोलॉजीज का क्या इंपॉर्टेंस है, और उसे हम कैसे इंटरप्रीट करें। सिंपल सीबीसी जो होता है, सिंपल सीबीसी हमें बहुत कुछ बता सकता है, और किस तरह से बता सकता है वो हम देखेंगे। और इसी के अनुसार पंचकर्म प्रोटोकॉल्स क्या होने चाहिए, रेगुलर उपकर्म हम देखेंगे उसके साथ में। जैसे मैंने अभी आपको मॉडिफाइड उपकर्म का एक उदाहरण बताया कि हम लेजर जानूबस्ती कर रहे हैं, हम ट्रैक्शन जानूबस्ती भी करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड मसाज भी करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड स्नेहन भी करते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हम मॉडिफाइड उपकर्म के अंतर्गत इस कोर्स में सीखेंगे। मैं शेयर करूंगा पूरी चीजें। उसके बाद में अग्निकर्म, वेदन कर्म का यूज कैसा किया जाए जो एक्यूट पेन में भी आपको आराम दे और लॉन्ग टर्म के लिए भी दे। जैसे कि मैंने ड्राई निडलिंग का आपको दिखाया कि गंभीर और उत्तान ड्राई निडलिंग, डीप एंड सुपरफिशियल ड्राई निडलिंग वी आर गोइंग टू सी। और इसके बाद जो हम लेने वाले हैं वो हम लेंगे कि और कौन सी सामान्य प्रोसीजर्स है। जैसा जो टेक्निक्स हम सीखने वाले हैं उसमें मायोफेशियल रिलीज है, काइनेसियोलॉजी, बंधन और लेपन, जैसे कि मैंने कहा कि ऑर्थोपेडिक इसमें ये होता है। कपिंग, ऑल टाइप ऑफ कपिंग वी आर गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट, जैसा ड्राई, वेट, डायनेमिक और फायर कपिंग भी हम इसमें लेंगे। ओके सर, प्लीज डोंट पुट irrelevant मैसेजेस, इट इज डिस्टर्बिंग, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। मॉड्यूल 6 में हम देखने वाले ट्रिगर पॉइंट थेरेपी, मर्म चिकित्सा, ऑस्टियोपैथिक आर्टिकुलेशन और सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि देयर इज, और हम भी बहुत बार लिखते हैं कि देयर इज स्टिफनेस, पेन विथ स्टिफनेस। तो पेन विथ स्टिफनेस बहुत बार ट्रिगर पॉइंट से होता है, जिसमें हमारा ट्रिगर पॉइंट रिलीज टेक्निक होता है, जहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ओरिजिन ऑफ द पेन रहता है, जिसको रिलीज करने से उस पूरी एरिया का पेन जो है वो रिलीज हो जाता है। इसी के साथ मर्म चिकित्सा पे भी हमारे 1 या 2 लेक्चर होंगे, जिसमें कि आप बेसिक मर्म चिकित्सा यहाँ पे सीखेंगे, और मर्म चिकित्सा से तुरंत पेन कैसा रिलीज किया जा सके। यानी बहुत बार आपको किसी भी शस्त्र अस्त्र औषध के बिना भी आप पेशेंट को ठीक कर पाओगे, केवल आपकी उंगलियों से, केवल आपके हाथों से। और यही होते हैं ऑस्टियोपैथिक आर्टिकुलेशन में भी, यही करते हैं कि जहाँ स्टिफनेस है, जहाँ पे जॉइंट में मोबिलिटी कम हो चुकी है, वो मोबिलिटी को कैसे बढ़ाना है, कैसे उसको दे सकते हैं, कैसे फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, कैसे पेशेंट का जो दर्द दुश्वार कर चुका है, उसका मूवमेंट मुश्किल कर चुका है, उसको आसान कर सके। सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन के टेक्निक्स भी हम इसमें सीखने जाने वाले हैं, जैसे आईएसटीएम होगा, इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, मैनुअल सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, मसाज के डिफरेंट टेक्निक्स भी हम इसमें कवर करेंगे। और मॉड्यूल 7 से फिर हमारा शुरू होगा रीजनल ट्रीटमेंट, केवल सामान्य चिकित्सा ही नहीं, तो हम स्पेसिफिक चिकित्सा भी बोलेंगे, कि जिसमें सर्वाइकल स्पाइन में हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्लिनिकल मेथड्स क्या होनी चाहिए, ट्रीटमेंट क्या होगा, और रिहैबिलिटेशन उसका कैसे करना है। एक बार आपने डायग्नोस कर दिया, ट्रीट कर दिया, और फिर अभी उसको स्ट्रेंथन करना है, उसको रिहैब करना है, यानी पहले के जैसा उसको परफॉर्मेंस पे लाना है। तो मॉड्यूल 7 में हम अपर बॉडी कवर करने जा रहे हैं, जैसे कि सर्वाइकल और लंबर स्पाइन, सर्वाइकल और थोरेसिक स्पाइन। यस मैडम।
everything we are going to cover. एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर. तो मॉड्यूल 7 में हम कंप्लीट स्पाइन कवर कर रहे हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर स्पाइन. बहुत लोगों को लगता है कि थोरेसिक स्पाइन में कुछ हो ही नहीं सकता है, बट नहीं. जो काइफोसिस होता है, जो थोरेसिक काइफोसिस होता है, ये बहुत बार प्राइमरी रीजन होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और लंबर स्पॉन्डिलोसिस के लिए. तो हमें उस पर भी बिना फोकस किए नहीं चलना चाहिए होगा. इसी की तरह हम पेल्विक गर्डल भी उसमें कवर करेंगे स्पाइन के सेगमेंट में, क्योंकि बहुत बार पेल्विक गर्डल जो है ये इंजन होता है आपके स्पाइन का. जस्ट अ सेकंड. Sorry. Yeah, I am going to share each and everything. Just let me finish this last topic. Then it is about every joint, shoulder joint. हर शोल्डर जॉइंट पेन या हर पेन फ्रोजन शोल्डर नहीं होता है. जबकि अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो केवल 18 to 19% केसेस जो हमारे पास फ्रोजन या लैक ऑफ मोबिलिटी लेके आते हैं शोल्डर का. रेंज ऑफ मोशन जिसमें शोल्डर का कम हुआ है, स्टिफनेस जहां पे शोल्डर का है, उसमें से केवल 18 से 19% केसेस ही फ्रोजन शोल्डर की होती है, ट्रू फ्रोजन शोल्डर की होती है. Rest other cases are the other anomalies which are restricting the movement of the shoulder. So we are going to see the complete diagnosis, differential diagnosis, what are the reasons, so you can cover the maximum cases, maximum issues. Also, elbow joint is very important. Not only tennis elbow, there are golfer's elbow, there are ankylosis of elbow joint, there are arthritis of elbow joints. These are the cases present which are misdiagnosed as a tennis elbow only. So we are going to cover it. In wrist joint problems like carpal tunnel syndrome are there. The trigger thumb, trigger finger, and the wrist mobility problems, old fractures in the wrist, these all are we are going to cover. In module 9, we are going to cover the hip joint and the knee joint, that is the lower extremity, and also the ankle joint. So in each, the diagnosis, the differential diagnosis, the treatment protocols, the treatment options, and the rehabilitation we are going to see. So after completing this 9th module, we will cover the rheumatism part, in which we are going to cover the diagnosis, the modern point of view, the Ayurveda point of view. In modern point of view, what are the diseases covered under the rheumatisms, like rheumatic arthritis, rheumatic ankylosis, then rheumatic fever, other kind of like post-viral arthralgia, streptococcus arthralgia, the post-streptococcal infection, like you have heard about the chikungunya, and some of the other diseases where if some of the people have attended the last lecture of the series, I have discussed an interesting case. In that, the case was of the post-streptococcal infection arthralgia, which we have treated as a spondyloarthropathy, that is Amas Samprapti. We treated it as a Amas Samprapti. Same is with the ankylosis. In the module 11, we are going to see some special conditions and syndromes like Quad equina syndrome and other syndromes of the joint and spine we are going to cover. In module 12, we will cover the diet and nutrition and yoga for rehab, so that we are going to offer a complete package. Yes, sir. ये सब practically देखना पड़ेगा. We are going to share something, sir. So ये जो भी सारे मॉड्यूल्स है, ये भी जो सारी थियोरेटिकल पार्ट्स हैं, तो दिस इज द कंसाइनमेंट, दिस इज द कंसाइज थिंग कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं. तो फंक्शनल एनाटॉमी, डायग्नोसिस, मर्म चिकित्सा, बंध, अग्नि, कपिंग, इनोवेटिव पंचकर्म, पोस्चर करेक्शन, बायोफेशियल रिलीज, गंभीर वेदन कर्म, ट्रिगर पॉइंट, पोस्चर करेक्शन, ऑस्टियोपैथिक आर्टिकुलेशन,
इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू और मसल एनर्जी टेक्निक्स एंड रिहैब प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें हम एक ही कोर्स में 6 महीने की कॉम्प्रहेंसिव कोर्स में हम सीखने जा रहे हैं। दिस इज मी, जो कि लीड करेगा इस कोर्स को। मैं, मेरा जितना भी पिछले 6-7 सालों का एक्सपीरियंस है पूरा झोंक दिया है मैंने इस कोर्स में। और सो these are all my gurus from where I have learned these all the things. So ये जो सारी टेक्निक्स अभी तक मैंने सीखी है और जो कुछ भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसे हम अगर अलग अलग आप सीखते हैं या अलग अलग कोर्स हम इसका बनाते हैं, तो इट विल कॉस्ट अराउंड 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट कि इतने सारी चीजें अलग अलग जाके सीखे। मेरा विजन, मेरा एम लाइफ में एक ही है कि हर आयुर्वेद डॉक्टर शुड बी एम्पावर्ड, एवरी डॉक्टर should be empowered with everything, और वो कभी भी कहीं पे भी कम नहीं पड़ना चाहिए। ही शुड बी कॉन्फिडेंट। और मैंने ये जिम्मा लिया है, इसीलिए हमने अर्वाचीन आयुर्वेद गुरुकुल ऐसा हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम रखा है। अर्वाचीन का मतलब होता है मॉडर्न आयुर्वेद गुरुकुल। सो वी आर गोइंग टू रॉक दिस मॉडर्न world with our ancient knowledge of Ayurveda. So for that purpose, special discount was already expired from up to 1st June हमने रखा था। फी विल बी 15,000 ओनली, जो कि हमने बेसिकली 20,000 रखी हुई थी। सो बट आई एम एक्सटेंडिंग, केवल पहले 50 लोगों के लिए हमने ये सीट रखी थी 1 जून तक भी। और तो अभी भी अगर कोई ये 48 आवर्स में इसको ज्वाइन करता है, तो वी आर गोइंग टू बुक देम विथ 15,000 ओनली। और इसके साथ एक बोनस, अगर कोई हमने पहले 50 लोगों के लिए एक स्पेशल बोनस रखा था, मेगा बोनस, कि 2 देश का ऑफलाइन वर्कशॉप रखा था, जो हॉन्ड्स ऑन ट्रेनिंग, जिसकी प्राइस नॉर्मली हम 15,000 रुपीज लेते हैं, उसके लिए हमने एब्सोल्युटली फ्री रखा है। इसमें एकोमोडेशन ये कंपलसरी नहीं है, यू कैन अवेल और यू कैन बुक योर ओन एकोमोडेशन। लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट 50 लोगों के लिए हमने रखी थी। So friends, for this, please contact Dr. Manjusha and Dr. Lalit sir. How to join, they will tell you. Okay, friends. So these are the, please take the screenshot or we will share it in the chat box. If Dr. Lalit sir is there, please share the details in the chat box, or Manjusha madam. Okay, now I am stopping the screen sharing and the forum is open for the questions. So, sir, please allow participant to unmute themselves. यस सर, जिनको भी कुछ इसके रिगार्डिंग क्वेरीज है, वो खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। या आप चैट बॉक्स में भी ये सब चीजें डाल सकते हैं, दोनों भी ऑप्शंस है आपके पास। कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं उनका आंसर देता हूँ। हील पेन मैनेज, हाँ मैडम, हील पेन मैनेजमेंट डेफिनेटली एंकल जॉइंट में आ जाएगा, लोअर एक्सट्रीमिटी में। वी आर नॉट गोइंग टू हाइड एनीथिंग, इट्स जस्ट टू एम्पावर यू पीपल। प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे मिलेगा? यस, रीता जीवत रामानी मैडम, जो भी पूरा कोर्स है इट इज 100% प्रैक्टिकल। बट प्रैक्टिकल ये जो होता है, ये विदाउट थ्योरी अधूरा होता है। और हम 6 महीने का कोर्स वापस जाके इंस्टीट्यूट लेवल पे नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से हम थ्योरी पार्ट जो है
वो पूरा ऑनलाइन लेंगे, और उसी के साथ साथ आपको जो डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाने जाने वाला हूँ इस पूरे कोर्स में, दे विल बी द रियल पेशेंट। हम जो ये है, तो इसकी वजह से आपको वैरायटी ऑफ पेशेंट्स भी एक्चुअल देखने को मिलेंगे, जो कि किसी भी वर्कशॉप में या कहीं पे भी हमको नहीं मिलते हैं। तो मैं आपको रियल टाइम रियल पेशेंट्स जो है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। उसी के साथ जैसे कि मैंने लास्ट में बताया कि हमने 2 दिन, इसके अलावा 2 दिन हमने ऑफलाइन कोर्स ये फ्री में रखा है, जिसकी नॉर्मली फीस में 25 से 30,000 रुपीज चार्ज करता हूँ इफ आई कवर ऑल दिस टेक्निक। तो वहां पे हम प्रैक्टिकली बात भी करेंगे, प्रैक्टिकली आपके डाउट भी सॉल्व करेंगे, और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी होगा। Lalit sir, please share the details in the chat box, ओके सर। because some people are asking about it. दूसरा sir, is the course certified course? Madam, certification is from our side. We will going to provide this certification. We are trying to get certified in the due course. If it is certified, then you will get the certified. The Dr. Lalit and Dr. Manjusha will guide you in detail about that. 6 मंथ डेली क्लास होगी क्या सर? टाइम क्या रहेगा? नहीं सर, डेली नहीं होगा, बट एक ऐसा पकड़ लीजिए आप कि हफ्ते में 1 या 2 दिन क्लास रहेगा। वीकली वंस और ट्वाइस क्लास विल बी देयर। यू विल हैव द रिकॉर्डिंग इफ यू मिस द सम ऑफ द क्लास, इफ यू मिस, बट आई विल इंसिस्ट कि क्लास ज्वाइन कीजिए। हम ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, 1 से 1.5 घंटे का ही क्लास रखेंगे, और सबके कन्वीनियंस के हिसाब से रखने की कोशिश करेंगे। Hands-on training, madam, most probably in my place, Akola, which is in Maharashtra near Nagpur. Most probably, अगर कुछ चेंज होता है तो we will let you know. ऑफलाइन बेहतर है सर, बट द theory can be covered in 3-4 days. और अगर आप आना चाहते हैं तो we are offering the 6 month internship program. So आप 6 महीने आके कर सकते हैं ऑफलाइन completely. When it will start? Most probably it will start in the first week of the July. ओके, आप अनम्यूट करके डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। Sir, good evening, sir. गुड इवनिंग। I'm Sridevi from Hyderabad, sir. या मैम। Sir, offline means, do you have other internship courses, sir? I mean, at your clinic? No, 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 no. Actually, I don't have that course or anything else. But if somebody is eager to learn it practically and how to go through the process and have a time, he can come to my clinic as a assistant doctor Okay. for 6 months. And in that particular course, definitely I am going to share all of my knowledge and with the practical patients. He will, but we don't allow more than 3 people at a time. Okay, okay, sir. Okay. Thank you, sir. Just Yes. Anybody else? Please, somebody has Hello. raised the hand. Yes, ma'am. Please. हेलो। Yes, ma'am. Please, you are audible. हाँ सर, मैं लेट ज्वाइन हुई थी, अभी लास्ट में आपका बस सुना था। Okay. और Okay, हाँ, तो वो आपका हमें हफ्ते में कितनी बार क्लास मैडम रहेगा, टाइम क्या रहेगा? 2 या 3 बार क्लास रखेंगे हम। ओके, एंड टाइमिंग? टाइमिंग सबके लिए जो सुटेबल हो, मोस्ट प्रोबेबली यही टाइम सबके लिए सुटेबल होता है, बिकॉज इससे पहले ओपीडी होती है और बाद में भी ओपीडी होती है। राइट, हाँ, दोपहर में। 3 to 5 के करीब हम वही क्लास रखेंगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच। सर, इसमें फ्रैक्चर का भी ट्रीटमेंट होता है।
यस मैम, फ्रैक्चर बट अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर, जो बहुत ज्यादा डिस्प्लेस है या जो बहुत ज्यादा जहाँ पे स्टिक फ्रैक्चर है या डिसलोकेटेड फ्रैक्चर है, आई डोंट इंसिस्ट कि उसे नॉन सर्जिकली ठीक करे, क्योंकि यूनियन होने में प्रॉब्लम होता है। हाँ, बट इफ देयर इज अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर, हमने पिछले एक इसमें लिया भी था कि अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर को मैनेज कैसे किया जाए। सर क्लास जूम मीट पर होगी क्या? नहीं सर, वी हैव आवर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म कॉल्ड IIAS। वो उस ऐप का आपको ये मिलेगा, एक्सेस मिलेगा, आपको लॉगिन आईडी मिलेगा, और आप उस ऐप के थ्रू स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट वहाँ ज्वाइन होंगे। वहीं पे आप इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल पाएगी। अगर हमारे कुछ असेसमेंट भी रहेंगे तो उसी ऐप पे हम उस असाइनमेंट भी उसी ऐप पे देंगे, बिकॉज ये इंटरएक्टिव होने जाने वाला है। आई एम रेगुलरली गोइंग टू कीप आई ऑन एवरी पार्टिसिपेंट। Sir, as per your experience and knowledge, do you think taking offline lectures on cupping, murmur, and such hands-on treatment be enough, even if we learn it online? Madam, first of all thing, taking off, I think you are asking about the online on cupping, because offline lectures always help. But the thing is that what happened in the offline courses, we can't take more than 3-4 days, और 3-4 दिनों में इतना सारा नॉलेज आप एक साथ नहीं मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, कपिंग करना बड़ी बात नहीं है, निडलिंग करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है उस कंसेप्ट को समझना, बड़ी बात है उसको डायग्नोज करना कि क्या मैं यहाँ कपिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। Cup is to fix a cup at any particular point is not a big deal. Just a minute, I may lose the connection for a while. I will come back in a few seconds.